and M. He's also my peer, and he has kindly supported us and shared his slide pack with us. So this is the slide pack that I'll be using for theoretical perspectives, research methodologies. I relied on my own notes that I think a lot of people now have a copy of. But for sociology, basic concepts of sociology, we are going to rely on a Stan slide pack, and he has very kindly agreed to it. And coincidentally, he just asked about the feedback on his slide pack just yesterday. So let's see how much do you like it. ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। ऑल्दो हम लोग ये चीजें कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि सिलसिला टूटे हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो वील ट्राई टू resume from there. From the moment he first saw Tanya step off the subway train, Dwayne knew she was the one. As the two walked up the stairs, Dwayne tried to get Tanya to stop and talk. At first, she ignored him, but after class, they met again and she agreed to join him for coffee. That was 3 months ago. Today, they are engaged to be married. Okay, Gio. If you were to ask people in the US, why do couples like Tonya and Dwayne marry? It is safe bet that almost everyone will reply people marry because they fall in love. Most of us find it hard to imagine a happy marriage without love. For the same reason, when people fall in love, we expect them to think about getting married. But is this decision about whom to marry really just a matter of personal feelings? There is plenty of evidence to show that if marriage love is the key to marriage, Cupid's arrow is carefully aimed at the society around us. Society has many rules about whom we should marry and should not marry in all states but Massachusetts, Vermont, New Hampshire, Connecticut, Iowa, New York, and Washington, D.C. The law rules out half the population, banning people from marrying someone of the same sex, even if the couple is deeply in love. But there are other rules as well. Sociologists have found that people, especially when they're young, are really likely to marry someone close in age, and people of all ages typically marry others in the same racial category, of similar social background, and of much the same level of education with similar degree of physical attractiveness. People end up making choices about whom to marry, but society narrows the field long before they do. जी, तो पूरा हमने आपको जो सुनाया है, बस सिंपल सी बात यह है कि मैरिज इज अ पर्सनल चॉइस, मैरिज इज अ पर्सनल डिसीजन, एंड मैरिज इज द मोस्ट personal decision या personal relationship one ever has. Otherwise तो ज्यादातर relations by virtue of birth बनते हैं, एक marriage और एक friendship. These are the two relations जो आप choice से बनाते हैं, लेकिन friendship marriage जितनी close relationship नहीं होती, और friendship बड़ी एक subjective सी relationship होती है. तो इतनी individual, इतनी personal relationship marriage को भी हम सिर्फ और सिर्फ पर्सनल चॉइस की बेसिस या आउटकम नहीं कह सकते, because there are a lot of social factors that are influencing our decision to get married to. So who to get married, when to get married, वो बंदा हमारी सोशो इकोनॉमिक क्लास से ताल्लुक रखता हो, हमारे खानदानी अकदार से मैच करता हो, उसके मजहबी रुझानात हमारे जैसे हों, जैसे अगर मैं बहुत गरीब हूँ तो मैं जैसे शादी करूँ वो भी बहुत गरीब हो, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट. तो वो चीजें मैरिज जैसा इंडिविजुअल डिसीजन भी सोशल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हो रहा है, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हो रहा है. बहुत सारे लोग ये देख के करते हैं कि खानदान से बाहर नहीं शादी करनी, अपनी उम्र से बहुत ज्यादा फर्क वाले लड़के से शादी नहीं करनी, या अपनी उम्र से बहुत छोटी लड़की से या अपनी उम्र के बराबर लड़की से शादी नहीं करनी. सारे कंसिडरेशंस होते हैं. इनका सही या गलत होना तो एक सब्जेक्टिव डिस्कशन है, मगर ये आइटम्स डिस्कस तो हो रहे होते हैं. सो वो कौन से फैक्टर्स, कौन सी चीजें कार फरमा हैं जो हमें
बताती हैं कि जी इससे शादी करनी है, इससे शादी नहीं करनी, वो फैक्टर्स सोशल फैक्टर्स होते हैं, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। सोसाइटी के कुछ कवानीन, सोसाइटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो इन चीजों को ड्राइव करते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें पढ़ना है और कोशिश करनी है कि किस तरह से वो हमारे हमारे बिहेवियर को एज एन इंडिविजुअल और फिर एज अ कलेक्टिव पार्ट ऑफ सोसाइटी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, कोई भी क्वेश्चन हो आप अपना हैंड रेस कर लीजिए या आप टाइप कर दीजिए, तो आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सून एज आई एम एबल टू। ओके जी, ओके जी। जैसे हम सिर्फ दो, अगर आप सोशल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ही देख लीजिए, तो अभी ये एवरेज नंबर ऑफ बर्थ्स पर विमेन देखा जा रहा है कि एक खातून कितने बच्चों को विलादत देती है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो अफगानिस्तान बहुत ज्यादा आपको ऑरेंज रेड कलर में नजर आ रहा होगा, क्योंकि एक खातून तकरीबन 6 से 7 बच्चों को जन्म देती है। और नाइजर शायद उससे भी ऊपर है। सोमालिया, यहाँ पर ये वो ममालिक हैं जहाँ आबादी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में एक खातून ऑन एवरेज 3 से 4 बच्चों को विलादत देती है। इंडिया में 2 से 3 बच्चों को विलादत देती है। इसी तरह से रशिया में 1 से 2 बच्चों को। जबकि अगर आप अमेरिका में आए, अमेरिका में भी आबादी का रुझान थोड़ा सा ज्यादा है, तो अमेरिका में भी 2 से 3 बच्चों। तो अफगानिस्तान में बख्तियार खान के 6 बच्चे हैं, लेकिन ये कॉमन पैटर्न है अफगानिस्तान के लिहाज से, क्योंकि वहां पे सोशल एक्सेप्टेंस है कि आपके बहुत ज्यादा बच्चे हैं। इसी तरह से सिंडी रॉकर जो 29 साल की हैं, उन्होंने अपनी जॉब से छुट्टी ली ताकि वो अपने पहले बच्चे को विलादत दे सके। वो क्योंकि अमेरिका में रहती हैं, उनको पेड लीव्स भी मिलती हैं। पहली बात है वो नौकरी कर रही हैं आजादाना, फिर उनको पेड लीव्स मिलती हैं। और उन्होंने 33 साल में अपनी पहली प्रेगनेंसी जो है वो देखी। तो ये आपको बता रहा है कि दो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, दो वेरी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में किस तरह से चीजें, किस तरह से कल्चर, किस तरह से सोशल नॉर्म्स डिफरेंट। ठीक है जी। ओके, सॉरी। सो इन चीजों को स्टडी करने का नाम सोशियोलॉजी है। ओके जी, व्हाट इज सोशियोलॉजी? Sociology is the scientific study of society and human behavior. सोशियोलॉजी एक माशरे की और एक इंसान की बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक होना जरूरी है। जब मैं आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी भी पढ़ा रहा था या थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स भी पढ़ा रहा था, तो एक चीज बहुत अहम थी। वो चीज ये थी कि ये जरूरी है कि आप किसी एक सिस्टम के तहत सोसाइटी को स्टडी करें। आप रैंडमली ना करें कि आप बैठे, आपने 4 चीजें ऑब्जर्व की और आपने कह दिया कि जी सोसाइटी इस तरह से गवर्न होती है। जी, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट कैन कॉज एबरेशन, रैंडमनेस इन योर ऑब्जर्वेशन। एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करने की, उनको एक्सपेरिमेंट्स करने की, थेरीज फॉर्मुलेट करने की, उन थेरीज को अप्लाई कर।
तो एक सेट ऑफ रूल्स होता है, वैलिडिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो that's why it's important to tell that it is a scientific study of society and human being. It's the study of social structure. एक सोसाइटी, एक मुआशरे का जो निज़ाम है, जो ढांचा है, वो किस तरह से बना हुआ है। Sociology investigates human social behavior from a group rather than an individual perspective. सोशियोलॉजी देखता है कि एक ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर एक ग्रुप में कैसा है, और ये इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स को नहीं देखता कि सिंगल ह्यूमन बीइंग को के पर्सपेक्टिव को देख रहा हो कि वो इन चीजों को कैसे परसीव करता है, कैसे रीड करता है। इट्स मोर अबाउट how do they scientifically evaluate what is happening in the society. It concentrates on patterns of social relationships primarily in modern societies. इसका ज्यादा रुझान सोशल रिलेशनशिप्स के पैटर्न पे होता है, खासकर मॉडर्न सोसाइटीज में जो पैटर्न्स हैं, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, ज्यादा एडवांस हो चुकी है। ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड, ये अब आप देख लें कि एक तरह से इंसानों को शो किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ सितारों से ये दिखाया गया है कि एक आप नोड पकड़ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल दिस नोड, एक बंदा कितने सारे लोगों के साथ लिंक्ड है। एक नोट यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ, ये 3 लोगों से डायरेक्टली लिंक है, लेकिन इन 3 लोगों का फिर डायरेक्ट लिंक मजीद 3 लोगों से, या मजीद 2 लोगों से, या मजीद 4 लोगों से। तो इस तरह से एक इंट्रिकेट पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स बनता है और एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी वजूद में। कॉम्प्लेक्स का मतलब सिर्फ पेचीदा या मुश्किल नहीं होता। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो डिफरेंट लेयर्स के अंदर हो, जिसके अंदर डिफरेंट लेयर्स इन हायरार्कीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, उसको हम कॉम्प्लेक्स लेयर कहते हैं। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? नो क्वेश्चन, ओके। So sociologists do not focus on the behavior of individuals but on patterns. भाई देखें, इट इज इम्पॉसिबल कि आप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को स्टडी करें और उसको डिस्कस करें कि वो क्या करता है, बिकॉज वो तो एक तरह से साइकोलॉजी बन जाएगी, क्योंकि आप इंडिविजुअल की ब्रेन को इवैल्यूएट करें, इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल एंड सोशल मोटिवेशन। आपने ये देखना होता है कि एक गिवन सेट ऑफ पीपल के अंदर लोगों का एक ओवरऑल, एक एवरेज, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स टू सर्टेन थिंग्स कैसा है। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एनी वन ऑफ अस to study the individual behaviors of a lot of people. So rather we try to find patterns of behaviors in a group. ठीक है, पैटर्न्स को, सिंबल्स को हम ढूंढते हैं, ट्रेंड्स को देखते हैं सोशियोलॉजी में कि यार ज्यादातर क्या होता है। जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि ज्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि अपने एज ग्रुप के लोगों से ही शादी करें। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तमाम लोग जो हैं वो अपनी सिमिलर एज ग्रुप के लोगों से शादी करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने से बड़ी उम्र के लोगों से भी कर लेते हैं। अगर हम खातून को देखें तो कुछ खवातीन होती हैं जिनकी शादी उनकी मर्जी से अपनी एज से काफी ज्यादा बड़े हजरत के साथ भी हो जाती है, मर्द के साथ भी हो जाती है। और कुछ खवातीन की शादी अपनी एज से छोटी मर्द के साथ भी हो जाती है, मगर दीज आर जनरली एबरेशंस। हम उनको भी डिस्कस करते हैं, उनको भी स्टडी करते हैं जब हम उसके अंदर भी कोई पैटर्न ढूंढ। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि सोसाइटी में जैसी एक ईस्टर्न सोसाइटी है या खासकर साउथ एशियन सोसाइटी है, यहाँ पर खवातीन की शादी जब किसी मर्द से होती है तो थोड़ा सी एज का डिफरेंस होता है, एंड जनरली हस्बैंड इज ओल्डर देन द वाइफ। ठीक है, तो अब एक मिसाल हम और ले लेते हैं। जैसे एक यंग मैन है, उसने एक गैंग ज्वाइन कर लिया सिर्फ इसलिए कि वो ये बताना चाहे कि वो बड़ा टफ है या वो बड़ा मर्द है,
हमारे यहाँ होता है ना कि जरा बदमाशी दिखा के, जरा सख्ती दिखाकर लोग अपनी मर्दानगी को असर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक इंडिविजुअल बिहेवियर तो है, लेकिन अगर आप इसको बहुत सारे लोगों में इस बिहेवियर को देखेंगे तो आप कहेंगे ये एक पैटर्न डेवलप हो रहा है कि यंगस्टर्स सोशल एक्सेप्टेबिलिटी के लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहे हैं, इवन गैंगस्टर ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि वो भी टफ नजर आए, ठीक है जी। अ वुमन डिवोर्सेस हर हस्बैंड टू डेवलप हर पोटेंशियल। ये भी होता है कि बाज़ औक़ात हस्बैंड्स आर फाउंड टू बी इनहिबिटर्स इन देयर करियर ग्रोथ, तो वुमन समटाइम्स डिवोर्सेस हर हस्बैंड और सीक्स डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। टीन कमिट्स सुसाइड टू एस्केप डिप्रेशन। अब ये आप चीजें देखें तो ये हमारी सोसाइटी की कहानियां हैं, हमारी सोसाइटी में ये सब हो रहा है। तो ये सब चीजें चलती हैं। Sociologists attempt to explain these same events without relying on personal. अब आप ये बात जानते हैं, देखिए हर इंडिविजुअल के काम करने के लिए दो इन्फ्लुएंसेस, या हर इंडिविजुअल के काम करने के लिए टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन होती है। इस चीज को बहुत आप ध्यान से सुन लीजिए। जो दो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन होती हैं उनमें से एक होती है पर्सनल मोटिवेशन और दूसरी होती है सोशल मोटिवेशन। बहुत दफा बहुत सारे काम जो हो रहे होते हैं उसमें दोनों टाइप्स ऑफ मोटिवेशन कार फरमा होती है। कुछ ना कुछ हम पर्सनली भी अचीव करना चाह रहे होते हैं, जैसे ऊपर के आपने अभी एग्जांपल्स में देखी तो ये ऊपर की एग्जांपल्स में ये पर्सनल मोटिवेशन ही है। अगर बहुत सारे लोग ये चीज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है इस बंदे की कोई पर्सनल मोटिवेशन नहीं थी। लेकिन इसके साथ साथ सोशल मोटिवेशन, कुछ सोशल फैक्टर्स भी होते हैं। शादी एक पर्सनल चॉइस भी है कि आप किस शख्स से शादी करना चाह रहे हैं, आप किस की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हैं, मगर इसके साथ साथ आपने किससे शादी करनी है इसके लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो ड्राइव कर रहे होते हैं और जो बता रहे होते हैं कि आपने किसको चूज करना है अपनी शादी। ये इवन थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव दिखता है, लेकिन हमारे लाशूर में शायद हम ढूंढते भी प्यार करने के लिए उसको हैं जो कुछ टिक बॉक्सेस, वो चेक बॉक्सेस को टिक कर रहा हो। सही है। सो एक सोशियोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो सोशल एक्सप्लेनेशंस को देखे रादर देन पर्सनल एक्सप्लेनेशन। सो इवन आप देखें डिलिंक्वेंसी, हम लोग डिस्कस करते हैं डिलिंक्वेंसी होते हैं किसी किसी का जराइम में मुब्तला हो जाना। जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी किसी नाबालिग बच्चे का जराइम में मुलविस हो जाना। डिवोर्स, सुसाइड, ये तीनों जो एक्ट्स हैं ये पर्सनली मोटिवेटेड होते हैं, इंडिविजुअली मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनकी कुछ सोशल सोशल मोटिवेटर्स भी होते हैं, सोशल फैक्टर्स भी होते हैं जो हमें ड्राइव कर रहे होते हैं इस डिसीजन की तरफ। बाज़ औक़ात एक खातून बहुत कमिटेड होती है कि नहीं मुझे इस शख्स से निजात हासिल करनी है, मगर देयर आर देन सर्टेन फैक्टर्स इन इन हर सोसाइटी दैट इनहिबिट हर, दैट डिस्करेज हर टू गेट डिवोर्स्ड। आपने क्या नहीं देखा कि लोग सिंगल वुमन को के ऊपर को और तरीके से जज कर रहे होते हैं। लोग सोसाइटी फिर उनको समझती है कि ये ओवर इंडिपेंडेंट हैं, ये हॉट हेडेड हैं, हालांकि बाज़ औक़ात औरत के ऊपर जितना जुल्म हो रहा होता है वो उसको ही पता होता है। लेकिन ये चीजें फिर एक तरह से सोसाइटी प्रेशर क्रिएट कर रही है। हम डिवोर्स्ड वुमेन को कोई बहुत अच्छे तरीके से सोसाइटी ट्रीट नहीं कर रही होती। सोसाइटी उसका उसको जुल्म बर्दाश्त करते तो देख सकती है। सोसाइटी उसको मजलूम औरत के तौर पे देख सकती है। उसको सोसाइटी को ये कबूल है कि वो जुल्म बर्दाश्त करते करते मर जाए। लेकिन सोसाइटी आम तौर पर, खासकर एक पेट्रियार्कल सोसाइटी या एक कंजर्वेटिव सोसाइटी, ये पसंद नहीं करती है कि वो जुल्म के खिलाफ खड़ी हो जाए और उस जालिम शख्स से निजात हासिल करे। तो ये सोशल फैक्टर्स हैं जो उसको तलाक हासिल करने से रोक भी सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से सुसाइड एक सोशल फिनोमिनन भी है। ईमाइल डर्कहिम हमने आपको पढ़ाया तो आपको याद होगा कि किस तरह से ईमाइल डर्कहिम का जो स्टडी ऑफ सुसाइड है उसने प्रूव किया कि सोशल फैक्टर्स भी, सोशियोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं सोसाइटी।
Young men join gangs because they have been taught by their society to be masculine. हमारे यहाँ पर मर्दानगी की, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि एक पहचान बन गई, एक शर्त बन चुकी है कि आपने जरा जैसे कराची की टर्म्स में लोकली कहते हैं टशन दिखाने, आपने जरा और बदमाश लोगों के साथ उठना बैठना है, आपने असला इस्तेमाल कर, आपने थोड़ी सी वल्गर लैंग्वेज भी इस्तेमाल करनी है, और आपने लोगों को बताना देखो मैं कितना मर्द हूँ, आपने जरा असलहा और वायलेंस को एग्जिबिट करना है। तो ये चीजें सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन। कोई बच्चा जरा सा पुरअमन होता है, जरा लड़ाई झगड़े में कम होता है, तो कहते हो ये तो बाजी है। ये तो अब ये सोसाइटी ने कुछ एक्सपेक्टेशंस खुद बना ली, मैस्कुलिनिटी की, फेमिनिनिटी की। तो ये चीजें फिर कौन ड्राइव कर? सोसाइटी। उसकी शायद पर्सनल मोटिवेशन ना हो किसी गैंग को ज्वाइन करने की, लेकिन फिर उसने ये देखा कि भाई अगर मैंने ना ज्वाइन किया तो सोसाइटी तो मुझे जो है वो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी मर्द के तौर पे। तो ये वाले एक और मसला है, ठीक है ना। इसी तरह से मोर women डिवोर्स बिकॉज ऑफ द सोशल ट्रेंड टुवर्ड्स सेक्सुअल इक्वालिटी। अब वेस्ट के अंदर सेक्सुअल इक्वालिटी की बात आ रही है, तो अब वहां पर ये रुझान बढ़ता जा रहा है। लेकिन ईस्ट में अभी भी डिवोर्स के ऊपर बात इतनी ज्यादा नहीं होती, समझ रहे हो। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है जी। सर आई वाज रीडिंग दैट अनदर रीजन ऑफ किड्स is to find a missing father figure in their life। जी जी बिल्कुल, ये भी मोटिवेशंस होती हैं, लेकिन ये पर्सनल मोटिवेशन है। जैसे मैंने आपसे अर्ज की तो ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम डिस्कस करेंगे, साइकोलॉजी इंडिविजुअल मोटिवेशंस को डिस्कस करते हैं। सोशियोलॉजी जनरल ट्रेंड देखती है सोसाइटी का। तो बिल्कुल ऐसे होगा इसका कि मिसिंग फादर फिगर लोग ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इफ वी स्टडी क्या जनरली बहुत सारे लोग सोसाइटी में जो है वो ऐसे ही कर रहे होते हैं, तो फिर उसका जवाब है गालिबन नहीं। ठीक है, ओके। Teens commit suicide because of peer group expectations of performance, material possessions and physical appearance। ये हमारे मुल्क में भी है और वेस्ट में थोड़ा ज्यादा हो गया है। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया कल्चर इसको ज्यादा रीइंफोर्स कर रहा है कि जी अब हमारे यहाँ बहुत कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है। हर एक से एक्सपेक्ट किया जाता है वो बहुत अच्छे ग्रेड्स ले, वो कामयाब नौकरी हासिल करे, वो लाख रुपए से ज्यादा उसकी कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए, उसके पास गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी रिस्ट वॉच होनी चाहिए, एप्पल आईफोन होना चाहिए, पता नहीं आजकल तो 12 चल रहा है शायद। फिर फिजिकल अपीयरेंस में स्मार्ट दिखना चाहिए, बॉडी बिल्डर होना चाहिए, खातून है तो जी उनको किस किस्म के कपड़े पहनने चाहिए, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए। तो लोग, सोसाइटी ने कुछ एक्सपेक्टेशंस बना ली हैं, और जब वो नहीं पूरी हो रही होती तो सोसाइटी मेक्स फन ऑफ दोस पीपल। बिकॉज हमारे यहाँ एक अच्छे लड़के, एक यंग लड़के, एक यंग लड़की के लिए कुछ हमने सोसाइटी ने क्राइटेरिया सेट कर दिया, और हर सोसाइटी में होते हैं। तो ईस्ट में और तरह के, वेस्ट में और तरह के, और ये प्रेशर क्रिएट करते हैं टीन्स के ऊपर, जो टीन्स के ऊपर, ट्वेंटीज में जो लोग हैं अपने, कि भाई वो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी के लिए कोशिश करते हैं, उनके पास आईफोन भी हो, कंप्यूटर भी हो, उनके पास लेटेस्ट अगर वो गेमर्स हैं तो लेटेस्ट गेमिंग कंसोल्स हों। तो ये तमाम चीजें जो हैं, फिर एक
सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही होती है। बिकॉज अच्छा, मजे की बात है, वो सोसाइटी कौन है? वो हम ही लोग हैं। हम ही लोग अपने लिए अपने लोगों के साथ जो है मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशंस भी पैरेलल में क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये एक एक विशियस साइकिल बन जाता है कि वी आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, and then we in a collective way we are also judging and expecting other things from our society. So that's how it is. समझ रहे हैं बात? So this is how it is. Okay, moving forward. Any question? सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, तो हम सोशियोलॉजिकल मैंने आपको बताया भी, हम उन्हीं को मजीद एक्सप्लोर भी कर लेते हैं। एक है फंक्शनलिज्म, दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट। फंक्शनलिज्म की हम बात कर लेते हैं जल्दी से। ऑल्दो हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स जब पढ़ रहे थे तो हम इसको डिटेल में पढ़ भी लिया था, मगर मजीद हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो फंक्शनलिज्म कहता है कि सोसाइटी के जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, वो एक दूसरे से वो एक दूसरे के साथ एक सिंक्रोनाइजेशन में है, एक दूसरे के साथ एक अग्रीमेंट में, एक दूसरे को, ये पार्ट्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं और स्टेबिलिटी कॉज करते हैं सोसाइटी। फंक्शनलिज्म का क्या मतलब है कि चीजें फंक्शनल हैं, चीजें डिसफंक्शनल नहीं है, चीजें ऑपरेट कर रही हैं, चीजें नॉर्मलसी की तरफ हैं, चीजें स्टेबल हैं। तो फंक्शनलिज्म कहता है कि सोसाइटी एक स्टेबिलिटी में एग्जिस्ट करती है और वो स्टेबिलिटी जो है वो सोसाइटी की एग्जिस्टेंस और इक्विलिब्रियम को इंश्योर करती है। ठीक है जी। अब जो मेजर फंक्शंस हैं वो फैमिली प्राइमरी है, इकोनॉमी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, ये मेजर इंस्टीट्यूशंस होते हैं एक सोसाइटी के या पार्ट्स होते हैं। फैमिली जो है वो रिप्रोडक्शन और केयर प्रोवाइड करती है। फैमिली ना हो तो नए लोग वजूद में ना आए, केयरिंग नहीं हो तो फिर एक इंडिविजुअल की जो नीड होती है वो पूरी नहीं हो रही होती। इस तो इसी तरह से जो रिलीजन है, रिलीजन आपको जो है वो प्रोवाइड करता है सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स जिनके अकॉर्डिंगली आपने जिंदगी गुजारनी है। इसके अलावा इकोनॉमी है, इकोनॉमी आपको एग्जिस्टेंस और सब्सिस्टेंस की चीजें प्रोवाइड कर रही होती है कि इकोनॉमी ने बताना है कि गुड्स प्रोड्यूस कैसे होंगे या सर्विसेज प्रोड्यूस कैसे होंगी, उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उनको कंज्यूम कैसे करना है, और उनके उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सोसाइटी ने अपनी नीड्स को कैसे पूरा। तो फंक्शनलिस्ट, जो लोग फंक्शनलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं वो फंक्शनलिस्ट कहलाते हैं। और वो कहते हैं कि सोसाइटी एक इंटीग्रेटेड होल है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स एक प्रॉपर हार्मनी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। और जब एक पार्ट के अंदर चेंज आता है तो बहुत सारे जो दूसरे पार्ट्स हैं वो अपने अंदर उस चेंज को अडेप्ट करते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू दैट चेंज वो ऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी के अंदर कुछ चेंज आता है, ठीक है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और जो हमारी फैक्ट्रीज हैं वहां पे ऑटोमेशन आ गई, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लग गई। सो उससे हमारी सोसाइटी में फैमिली सिस्टम हमारा अफेक्ट हुआ, हमारा रिलीजन जो इंस्टीट्यूशन है उसको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़े। तो ये सारी चीजें अहम है। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हेन मोस्ट पीपल मेड देयर लिविंग बाय फार्मिंग, अ लार्ज फार्म लेबर फोर्स वाज नीड। तो उस दौर में एक बहुत बड़ी लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती थी, फार्मिंग होती थी, तमाम बड़े बड़े खानदान साथ रहते थे, उनके बहुत सारे बच्चे होते थे। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो ऑटोमेशन की तरफ बहुत ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट कम हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात होने लगी, उसको रिड्यूस करने की बात होने लगी, और फिर बच्चों की तादाद को कम करने की बात होने लगी, वर्किंग आवर्स की बात होने लगी,
मुख्तलिफ वर्क और लाइफ को सेपरेट करके देखा जाने लगा, तो ये वो चीजें हैं जिसने हमारी फैमिली सिस्टम को भी चेंज किया। ठीक है जी, ये कुछ मेजर इंस्टीट्यूशन हैं। आप फंक्शनलिस्ट थ्योरी को बहुत डिटेल में आप देखें, ये एक बहुत ही अहम थ्योरी है। ठीक है जी, अब हम आते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। ये बिल्कुल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की जो है वो डिफरेंट वो है। ये कहता है कि सोसाइटी के मुख्तलिफ ऑर्गन, सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ कर रहे हैं, एक दूसरे से एक जद्दोजहद में, एक दूसरे को हरा कर, नीचा दिखाकर आगे बढ़ने की ये चक्कर में। तो ये इसको और तरीके से देखते हैं। ठीक है जी, जैसे अब आप लोग ये पढ़ें, गिव मी 2 minutes टू, एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड, सो यू रीड इट। ये क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में भी, तो आप इसको खुद पढ़ें और फिर हम इसको डिस्कस। ओके जी, सो वी आर बैक। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स और ऑफ सोसाइटी हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स ऑफ सोसाइटी हैं, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में एक दूसरे से
लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाना चाहते हैं, एक दूसरे को हरा के अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज, अपने गेन्स को मैक्सिमाइज करना। रिसेंट ग्लोबल मी टू मूवमेंट कैन बी एग्जांपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आई थिंक ये तमाम चीजों को आप कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। साजिदा, आपने अच्छा पॉइंट आउट किया है कि मी टू इज आल्सो कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस कि ये सोसाइटी के अंदर चेंज लाना चाहती है। सोसाइटी के अंदर कोई भी मूवमेंट, कोई भी अटेम्प्ट, कोई भी जो एक्ट है जो सोसाइटी को चेंज करना चाह रहा है, उसके अंदर तब्दीली लाना चाह रहा है, उसकी स्टेब्लिश नॉर्म्स को चैलेंज करना चाह रहा है, तो उसको हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की टर्म में ही देखेंगे। और इंटरेस्टिंगली फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के ऊपर यही सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है कि अगर सोसाइटी इतनी स्टेबल और इतनी आइडियल तरीके से चल रही है तो फिर सोसाइटी के अंदर चेंजेस की बात क्यों हो रही है। सोसाइटी के अंदर अगर इतनी स्टेबिलिटी है तो फिर सोसाइटी के अंदर जो है वो ये चेंजेस की मूवमेंट्स, मी टू मूवमेंट क्यों है, एलजीबीटी क्यों मूवमेंट क्यों है। एलजीबीटी को आप बहुत सारे कॉनोटेशंस में देख सकते हैं, लेकिन इसका एक सोशियोलॉजिकल कॉनोटेशन है जो कि आपने बयान किया कि वो सोसाइटी के अंदर चेंज को देखना चाहते हैं। सो या सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो उसको चैलेंज करते हैं। मीटू मूवमेंट क्या है जी? मीटू मूवमेंट जो है वो चैलेंज करती है सोशल नॉर्म्स को, कि सोशल नॉर्म्स जो है कि आई एम सॉरी, पावर के लिए मर्द जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यस, गुड गुड ऑब्जर्वेशन। अच्छा जी, मैनी कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स एग्जिस्ट इन सोसाइटीज में कोई शक नहीं है, और बहुत सारे ग्रुप्स एक दूसरे से स्ट्रगल कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। ठीक है जी। तो विमेन्स मूवमेंट इज अटेम्प्टिंग टू चेंज द बैलेंस ऑफ पावर। बिल्कुल, एक एस्टेब्लिश नॉर्म्स है कि मर्द सुपीरियर है, लेकिन अब औरत मार्च होता है, मर्द की ज्यादतियों पे बात होती है, मी टू होता है। ब्लैक लाइव्स मैटर इसी तरह से है कि ब्लैक लाइव्स मैटर चैलेंज करता है उन सोशल नॉर्म्स को कि जो ये सोच के बैठी है कि जी औरत जो है वो, सॉरी, जो ब्लैक रेस है उसके अंदर क्रिमिनल टेंडेंसी ज्यादा है। ये एक सेट पैटर्न बनता जा रहा है, एक माइंडसेट बनता जा रहा है। फिर पुलिस के एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्लैक रेस के अंदर ये माइंडसेट है। फिर वायलेंस अगेंस्ट पुलिस, वायलेंस अगेंस्ट पीपल ऑफ कलर ज्यादा है, तो ये मूवमेंट्स उसको चैलेंज कर रही है। तो दैट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन। मोर women आर either मेकिंग और इन्फ्लुएंसिंग डिसीजंस इन बिजनेस, पॉलिटिक्स, मेडिसिन। की बात सही है। इसी तरह से जेंडर रिलेशंस चेंज हो रहे हैं अब। आई एम सॉरी, आई थिंक बहुत सारी जो खवातीन हैं वो अपनी शादी नहीं करना चाहती हैं, बच्चे कम पैदा करना चाहती हैं, मर्दों से कहती हैं कि जी घर के काम में उनका हाथ बटाया जाए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि ये चेंजेस की उमंग लोगों के दिल में है। इसका मतलब है कि सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अगर आप सोसाइटी को स्टेबल और फंक्शनल कहें तो इसका मतलब है कि जो नॉर्म्स बन चुकी हैं कि मर्द सिर्फ घर का कोई काम नहीं करेगा, औरत बच्चे पैदा करेगी, उन्हें पालेगी, नौकरी करना चाहे तो नौकरी भी करेगी, और मर्द नौकरी करके आ जाएगा और काम नहीं करेगा, तो ये तो फिर इसका मतलब है कि ये औरतों के इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट कर रही है बात। तो वो फिर ये वो कहते हैं कि ये चेंज होना चाहिए पर्सपेक्टिव। सो दैट्स हाउ इट इज। एक इंटरेस्टिंग सी आप एनिमेशन देख लीजिए। मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। दो लोग हैं जो दफ्तर में मौजूद हैं, और दोनों का अलग अलग वो किस अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। अभी ये जो मर्द हैं जो वर्क प्लेस में, हम उनको आपको उनकी बातें दे रहे हैं। डिड यू सी द पैकर्स, then the Ravens, Lion in the second half. Cardinals and defense looked like took
the bears and 7. Blue. Cowboys still team to beat. Still need to beat this team. Why are all the guys at the water cooler at the same time? Has there been a drought? Only intellectually and the doubts just starting. आप देखें कि मर्द क्या डिस्कशन कर रहे हैं, मर्द एक चीज को कैसे देख रहे हैं, एक साथ बैठ के वो किसी गेम को डिस्कस करें खड़े होकर पानी के डिस्पेंसर के पास, जबकि औरतें जब देख रही हैं तो यार ये क्यों जमा हो गए सारे, क्या हो गया, क्या पानी खत्म होने वाले, क्या खुश्क साली हो गई है। तो औरत दूसरी उसकी को वो कर कहती है कि नहीं इंटेलेक्चुअली तो खुश्क साली है और ये तो अभी शुरू हुई है। तो किस तरह से मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ये सिर्फ इस बात को शो कर रहा है। मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, यानी अमीर का गरीब से कॉन्फ्लिक्ट, लोअर मिडिल क्लास का रिच क्लास से, मिडिल क्लास का पुअर क्लास से, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। रेशियल कॉन्फ्लिक्ट, मुख्तलिफ बिरादरियों, मुख्तलिफ कौमियतों, मुख्तलिफ नस्लों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट। पाकिस्तान में आपने देखा है कराची में रेशियल और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अमेरिका में अब आप देख लें ब्लैक्स एंड वाइट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। यूरोप के अंदर यूरोपियन नॉन यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए, इस्लामोफोबिया की बातें हो रही हैं। जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मर्द और औरत का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। औरतें अब उस तरह से जुल्म को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। फिर इसी तरह से ट्रांसजेंडर जो पॉपुलेशन है उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो अपने राइट्स के लिए अब वॉइस रेज कर रही हैं। तो ये तमाम चीजें, both functionalism and conflict theory deal with large social units such as economy and broad social processes such as conflict among societies. मुख्तलिफ ये सोसाइटी को मैक्रो लेवल पर देख रही होती है, लार्ज स्केल यूनिट, इसीलिए इनको मैक्रो लेवल अप्रोचेस कहते हैं, फंक्शनलिज्म को और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। जबकि एक पर्सपेक्टिव ऐसा है जो सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ सिंबल्स को, उनसे एसोसिएटेड मीनिंग्स को देखता है, यानी माइक्रो लेवल पे, यानी सोसाइटी के मुख्तलिफ यूनिट्स के फंक्शन को देखता है, उनके आपस के इंटरेक्शन और उसके पैटर्न को देखता है, उसको कहते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। और इसके बानी है मैक्स वेबर। और इसका पर्सपेक्टिव क्या है कि सोसाइटी को लार्ज स्केल सोशल स्ट्रक्चर्स की जगह इस तरह की जगह उन पैटर्न्स के लिहाज से स्टडी करना चाहिए जिन पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। टू सोशियोलॉजिस्ट चार्ल्स कूली और जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जीएच मीड, इन्होंने इंसाइट्स डेवलप की कि ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज दे मेंबर्स इन्फ्लुएंस ईच अदर्स बिहेवियर। यानी हम आमतौर पे जो मैक्रो लेवल अप्रोचेस है उसमें देखते हैं कि लार्ज सोशल यूनिट्स इंडिविजुअल्स को कैसे इम्पैक्ट करते हैं या इंडिविजुअल्स की बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। जबकि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो कि माइक्रो लेवल अप्रोच है वो ये देखती है कि इंडिविजुअल्स की बिहेवियर और इंडिविजुअल्स के पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन विद ईच अदर्स इन सोसाइटी एट लार्ज को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। These early American sociologists, in short, created symbolic interactionism, a perspective that focuses on the actual interaction among people. ठीक है जी, symbolic interactionism क्या है? सोसाइटी कुछ सिंबल्स को तख्लीक करती है, फिर इन सिंबल से कुछ मीनिंग्स एस्टेब्लिश होते हैं, फिर उन मीनिंग्स के हिसाब से एक व्यू पॉइंट बनता है, फिर उन मीनिंग्स से जो व्यू पॉइंट आप एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और फिर सोसाइटी में मजीद रुझान आता है। सो दैट इज हाउ इट इज। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एक पर्सपेक्टिव है जो कि इंटरेक्शन अमंग पीपल के ऊपर फोकस, ठीक है जी। और हम इस ये कहता है कि हम एक सिंबल को कुछ मीनिंग्स असाइन कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि दूसरा उन मीनिंग्स के लिहाज से कैसे परफॉर्म कर, ठीक है जी। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लैटिन अमेरिका में जो म्यूजिशियंस थे, अमेरिकन म्यूजिशियंस यानी नॉर्थ अमेरिका से गए हुए जो म्यूजिशियंस थे, उनको ये बात का एहसास हो गया कि अगर एट द एंड ऑफ परफॉर्मेंस सीटी बजाई जा रही है तो इसका मतलब है कि लोगों को आपकी परफॉर्मेंस नहीं पसंद है।
अच्छा, इसके कंपैरिजन में अगर पाकिस्तान में या इंडिया में सिटी पे जाते हैं ऑडियंस में से, तो इसका मतलब होता है कि उनको ये चीज पसंद आई। तो ये देख लीजिए कि हर सोसाइटी में सिंबल्स के मुख्तलिफ मीनिंग्स हो सकते हैं। कहीं पे इसका मतलब डिसअप्रूवल है, कहीं पे इसका मतलब अप्रूवल है। दैट्स इंटायरली ऑन यू। ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड, इंटरेक्शनिज्म और फंक्शनलिज्म में क्या फर्क है? फंक्शनलिज्म सोसाइटी को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के तौर पे देखता है जिसके कंपोनेंट्स स्टेबिलिटी और हार्मनी को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि फंक्शनलिज्म में, जबकि इंटरेक्शनिज्म कहता है कि सोसाइटी के मुख्तलिफ लिंग्विस्टिक और जेस्चरल कम्युनिकेशन का कोई एक मानी है, कुछ खास मानी होते हैं उस सोसाइटी के लिए, और वो मानी ड्राइव करते हैं उस सोसाइटी के बिहेवियर के। एक ही एक्ट के मुख्तलिफ मानी। आप बिल्कुल सिंपल सी एक बात देखिए, कोई आपकी जो कमर है या पीठ है उसके ऊपर थपकी लगाता है, इसके भी दो मानी होते हैं। आमतौर पे इसका क्या मानी लिया जाता है? पैट ऑन द बैक का मतलब होता है आप उनको उनको इंकरेज कर रहे हैं, आप उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। लेकिन पैट ऑन द बैक इवन कॉन्डेसेंशन को भी शो करता है कि कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड होता है। कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड क्या है जी? कि बेटा जी आप जितनी मर्जी मेहनत कर ले, हम आपसे बड़े, हमें पता है क्या होता है, ज्यादा उछलो नहीं। या आपको मिसबाउल हक का वो पेप्सी वाला ऐड तो याद होगा कि पहुंच तो गए हो पर इतने बड़े नहीं हुए। ठीक है जी। मैक्रो लेवल अप्रोच है फंक्शनलिज्म, जबकि माइक्रो लेवल अप्रोच इंटरेक्शनिज्म। सोसाइटी को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के तौर पे देखती है जिसके पार्ट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में इंटरलॉक्ड हैं, और ये उनका फंक्शन स्टडी करती है, और इनका एक दूसरे से रिलेशनशिप को स्टडी। जबकि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एक्शंस और रिएक्शंस ऑफ पीपल के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। ठीक है, कि लोग अपनी सिचुएशंस को किस तरह से डिफाइन करते हैं और किस तरह से चला रहे होते हैं। अभी तक क्लियर है जी? क्वेश्चन तो नहीं आया हमारे पास? ओके, कल्चर। अब हम पहले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं जिसको कल्चर कहा जाता है। कल्चर एक बहुत एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। अब आपको सोसाइटी की तीन अप्रोचेस समझ आ गई। दो मैक्रो लेवल अप्रोचेस हैं जिनको हम कहते हैं फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जबकि तीसरी माइक्रो लेवल अप्रोच है जिसको हम कहते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। और इन ये तीन अप्रोचेस हैं जिससे हम सोसाइटी को स्टडी कर रहे होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कल्चर। कॉमनली अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ कल्चर इज आर्ट लिटरेचर। आमतौर पर हम यही देखते हैं ना कि एक मुल्क में आर्ट के, एक कल्चर, एक सोसाइटी के अंदर आर्ट्स कैसे है, उसके फनून लतीफा कैसे हैं, वहाँ पे पेंटिंग्स होती हैं, वहाँ पे लिटरेचर, लिखने लिखाने का क्या कॉन्सेप्ट है, वो लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, उनके कपड़ों में रंग क्या है, उनके म्यूजिक के क्या मीनिंग है, वो कौन सी साज व आवाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कल्चर का जो सोशियोलॉजिकल मीनिंग है वो बहुत वास्ट है और काफी डिफरेंट। Anything and everything about a society, ranging from values and beliefs to fashion and ambition, building furniture, is culture. कल्चर उस सोसाइटी का हर वो चीज है जिसके थ्रू सोसाइटी अपने बिलीफ्स और अपनी ट्रेडिशंस को एक्सप्रेस कर। इसमें कपड़े आ गए, इसमें बिल्डिंग्स आ गई, इसमें लिखना पढ़ना, गाना बजाना, साज आवाज, फिल्म, खाना पीना, लैंग्वेज, सब कुछ शामिल। एवरीथिंग विच इज सोशली लर्न एंड इज शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। जो भी चीज आप सोसाइटी से लर्न कर रहे हो, एक दूसरे से इंटरेक्शन से लर्न कर रहे हो, वो कल्चर होती है। और ये तमाम मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इसको शेयर कर रहे हो। सर एडवर्ड टेलर कहते हैं द कॉम्प्लेक्स होल व्हिच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, laws, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society। ये तमाम चीजें या कोई और भी चीज, कोई भी ऐसी हैबिट या कैपेबिलिटी जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एक्वायर करते हैं, इसको कल्चर। कल्चर को सीखा जाता है, ये नहीं है कि कल्चर कोई आपके दिमाग में डला हुआ आता है जब आप पैदा होते हैं। कल्चर शेयर्ड होता है, बहुत बड़े बड़े क्वांटम ऑफ सोसाइटी का एक कल्चर होता है। कल्चर ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसमिसिव होता है,
सर्टेन यूनिट्स ऑफ पीपल से दूसरे यूनिट्स ऑफ पीपल पे जाता है। ये कॉन्टिन्यूअस और कॉम्युलेटिव होता है। कल्चर के अंदर जो है ना, एक तो कॉम्युलेटिव मतलब बहुत सारी चीजों का मजमुआ होता है, और कॉन्टिन्यूअस होता है। ये नहीं होता कि कल्चर एक चीज है जो बन गई और उसके बाद वो जमूद का शिकार हो गई। इसके अंदर मुसलसल एडवांसमेंट, मुसलसल कॉन्टिन्यूटी रहती है, डायनामिक और एडेप्टिव है, सीखता है, चेंज होता है, और ग्रेटिफाइंग है। कल्चर को अडॉप्ट करने से आपको खुशी मिलती है, ये ग्रेटिफाइंग। कल्चर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी, सोसाइटी कल्चर, सोसाइटी स्पेसिफिक एलिमेंट्स के कल्चर के क्या क्या होते हैं? सिंबल्स, लाजमी बात है। अब सिंबल से मुराद सिर्फ कोई खास निशानात नहीं है। सिंबल्स हर वो चीज है जिसको आप मानी असाइन कर सकते हैं, जिसको कोई मीनिंग असाइन। हमारी सोसाइटी में सिर्फ हाथ उठाकर माथे के करीब ले जाना सलाम करने का सिंबल। अच्छा, ये आमतौर पे छोटा बड़े को इस तरह से सलाम करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि एक सीनियर या एज में सीनियर या ओहदे में सीनियर, वो सलाम का जवाब कैसे देते हैं? हल्का सा अपने माथे को झुका। जब हम खवातीन से मिलते हैं, हजरात, तो दे आर सपोज टू शो सम रिस्पेक्ट। व्हाट डू दे स्लाइटली टिल्ट देयर फोरहेड, देयर हेड, एंड ऑल्सो पुट देयर हैंड ऑन देयर चेस्ट टू शो के जी हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये सिंबल्स है। अब इस ये कहीं किसी ने ड्रॉ नहीं किया हुआ, ये कोई ड्राइंग, ये कोई कलर नहीं है, ये भी लेकिन एक सिंबल है। आप समझ रहे हैं बात? इंडिया के अंदर लोग अपने बड़ों के पैरों को छूते हैं, ये सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट। ये वहां का एक सिंबल बन चुका है। उस कल्चर के अंदर, जो हिंदू कल्चर है उसके अंदर, रिस्पेक्ट बड़े को ऐसे शो की जा रही होती। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो हैं, वो भी अपने सीनियर्स का इसी तरह से पैर छूते हैं, और वो बता रहे होते हैं कि नो, वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू, यू आर आवर टीचर। ये सिंबल। लैंग्वेज बहुत अहम यूनिट है कल्चर का। कहा जाता है लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ अ कल्चर। एक कल्चर के होने की एक, आप समझ लें कि एक गिवन, एक प्री रेक्विजिट है कि उस कल्चर का कोई ना कोई लैंग्वेज। आमतौर पर लैंग्वेज बोल के ही होती है, उसमें अल्फाज होते हैं, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, मगर कुछ कल्चर्स के अंदर लैंग्वेज स्पोकन नहीं होती, वो सिर्फ वॉइसेस पे मबनी होती, नॉर्म्स। हर कल्चर की कुछ कल्चरल नॉर्म्स होती हैं। बड़े का एहतराम करना हमारी कल्चर की नॉर्म है, लोग खवातीन का एहतराम करते हैं। हमारे कल्चर के अंदर तो एक अजीब बात हो गई, लोग खवातीन के ऊपर आवाजें कसते हैं पीठ पीछे जब अलग हो, या इंडिविजुअल लेवल पर कुछ लोग, बहुत कम, लेकिन इज्तिमाई तौर पे हर आदमी को यही शो करना पड़ता है कि मैं तो खवातीन का बहुत एहतराम करता हूं। तो रिस्पेक्टिंग women इज पार्ट ऑफ आवर कल्चरल नॉर्म। Being nice to people is, or especially children, is part of our cultural norm. या अथॉरिटी को हमारे यहाँ लोग बहुत ज्यादा सलाम कर रहे होते हैं, दैट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चरल नॉर्म नाउ, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। वैल्यूज, हमारी वैल्यूज होती हैं कुछ नॉर्म्स में। क्या है कि जी, लोग आमतौर पर फैमिली से बाहर शादी नहीं करते, ये एक नॉर्म बन चुकी है। लोग अपने फिरके से बाहर शादी नहीं करते, जो उनका मजहबी ख्याल रुझान होता है वो उस चीज में शादी करते हैं। वैल्यूज हो गई, रिचुअल्स हो गए, रिचुअल्स होते हैं, रसूमो रिवाज। तो ये 5 एलिमेंट्स ऑफ कल्चर हैं, अहम चीजें। कल्चर रिलेटिविज्म आएगा आगे। कल्चरल रिलेटिविज्म होता है कि आप कल्चर को कल्चर वेरी करता है फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, या फ्रॉम वन कल्चरल ट्रेड टू दूसरे। तो कल्चर को हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं? तो एक कल्चरल रिलेट, ये एक रिलेटिविस्टिक टर्म है, यानी कि इट इज रिलेटिव टू ईच अदर। तो कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब है कि कोई वैल्यू एब्सोल्यूट पॉजिटिव या एब्सोल्यूट नेगेटिव नहीं है। हम इसको आगे चल के वैसे डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, कल्चर के एलिमेंट्स आपने पढ़ लिए। नॉर्म्स क्या होते हैं? सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर, कि कोई किस तरह से बिहेव करेगा, उसके बिहेवियर क्या होगा, उसकी रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस को नॉर्म्स कहते हैं। ठीक है जी। पर्सपेक्टिव एंड प्रोस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव एंड प्रोस्क्रिप्टिव।
प्रेस्क्रिप्टिव होता है जो सोसाइटी कहे कि ये काम करो, प्रोस्क्रिप्टिव होता है जो सोसाइटी रोके कि ये काम करो। अच्छा जी, मोर norms that are highly significant and breakdown of such norms can result in severe response from society. Taboos. यानी वो नॉर्म्स जो काफी इंपॉर्टेंस रखती हैं सोसाइटी के लिए और इनकी वायलेशन को सोसाइटी पसंद नहीं करती, इनकी वायलेशन को टैबू कहा। फोकवेज ये वो इतनी अहम नॉर्म्स नहीं है, मगर स्टिल इनको इनको फॉलो करना जो है सोसाइटी को पसंद है। आप इसकी मिसालें ले लें तो अगर मोर्स में आप देख लें तो अजान के वक्त गाना चलाना, ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा एक ऐसा काम है जिसको पसंद नहीं किया जाता। या गैर शादीशुदा मर्द और गैर शादीशुदा औरत का रहना एक घर में, चाहे उनके दरमियान कोई रिलेशन ना हो, लेकिन ये हमारी माशरे की रिवायात के, हमारी अक़दार के खिलाफ है। तो ये टैबू है, ठीक है जी। इसी तरह से फोकवेज में ये कि आप एक खातून को गाली दें तो ये फोकवे की वायलेशन है। ऑल्दो गाली किसी को भी देना गलत है, लेकिन एक मर्द का एक खातून को गाली देना ज्यादा बड़ी वायलेशन ऑफ नॉर्म्स बन जाती है, तो ये इसको फोकवे कहते हैं। लेकिन इस ये इतना टफ, इतना क्रिटिकल चीज नहीं है। वैल्यूज, आइडियाज अबाउट वेदर एक्सपीरियंसेस आर इम्पोर्टेंट। वैल्यू मतलब किस चीज को सोसाइटी वैल्यू करती है, किस चीज को नहीं करती, यही वैल्यूज है। जो चीजें ये डिसाइड करती हैं कि सोसाइटी किस चीज को अच्छा समझे, किस चीज को डिजायरेबल समझे, किस चीज को बुरा समझे, किस चीज को शन करना चाहे, हटा देना चाहे, रोकना चाहे, इसी को वैल्यूज कहते हैं। हॉट एंड हंट कहते हैं वैल्यूज आर कल्चरली डिफाइंड स्टैंडर्ड्स दैट पीपल यूज टू डिसाइड व्हाट इज डिजायरेबल, गुड एंड ब्यूटीफुल। ठीक है जी। अब पाकिस्तान की वैल्यूज क्या है? कास्ट एंड सुपीरियरिटी, हॉस्पिटैलिटी, मटीरियलिज्म, सिंप्लिसिटी। अब मटीरियलिज्म और सिंप्लिसिटी कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज हैं, लेकिन मौजूद है हमारे इसमें। हमें से हर आदमी सादगी की बात करेगा, शादी में खर्चा नहीं करना चाहिए, ये तो असराफ है, शैतान का भाई होता है फजूल खर्ची करने वाला, ये तमाम बातें हम करेंगे। बट हैविंग सेड दैट वी विल आल्सो स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज इन शादी। हर किसी की कोशिश होती है, वो सालों से इंतजार कर रहे होते हैं कि अपने पैसे, अपनी दौलत को वो दिखाएं, उसकी नमूदो नुमाइश करें। तो ये मटीरियलिज्म भी है कि भाई अगर ना दिखाया तो पैसे जमा क्यों किए थे। बच्चे मम्मी अब्बू को कहते हैं कि अगर इतने पैसे लगाने ही नहीं तो क्या जरूरत है शादी करनी, मेरी तो नाक कट जाएगी। ठीक है जी। बिलीव्स, स्पेसिफिक आइडियाज और थॉट्स दैट पीपल होल्ड टू बी ट्रू। बिलीव्स वो चीजें जिनको लोग सच मानते हैं, कि जैसे कि जैसे कि सच बोलेंगे तो अल्लाह अजर देगा, खुदा एक है और खुदा को मानना है, हमें इस दुनिया में जो करेंगे उसका अजर अल्लाह ताला ऊपर देगा। ये तमाम चीजें क्या हैं? ये बिलीव्स हैं हमारे। लेकिन बाज़ औक़ात लोग इसके ऊपर यकीन रखते हैं, कुछ लोग मुंह से कहते हैं लेकिन प्रैक्टिकली यकीन नहीं रखते। मगर दीज आर द थिंग्स दैट, जन्नत एक बिलीफ है बिल्कुल। सैंक्शंस, सैंक्शंस होती हैं सजाएं या ऐसी चीजें जिन या ऐसे रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स यूज्ड टू एस्टैब्लिश सोशल कंट्रोल। ऐसी चीजें जिनको आप या तो जिसके इनाम में कुछ दें, जिसको करने पे या जिसको ना करने पे आप इनाम के तौर पे दें, या फिर कोई ऐसी बुरी चीज की जिसके या कोई ऐसी सजा जो किसी बुरी चीज के करने पे आप दें। तो ये रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स को सैंक्शन कहते हैं। और इनका मतलब क्या होता है? सोशल कंट्रोल। आप बच्चा चोरी करेगा या बच्चा झूठ बोलेगा या बच्चा गाली देगा तो वालिदा उसको डांटेंगी, ये सैंक्शन है। बच्चा अच्छी बात करेगा, सच बोलेगा, कलमा सुनाएगा, पोम सुनाएगा, तो माँ उसको प्यार करेगी, ये उसका रिवॉर्ड है। तो सैंक्शन भी होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होती हैं। पॉजिटिव सैंक्शंस मतलब रिवॉर्ड, नेगेटिव सैंक्शंस मतलब पनिशमेंट। फॉर्मल मतलब अगर किसी रूल एंड रेगुलेशन किसी कानून के तहत दिए जाए, जैसे स्टेट देती है, जैसे कौम की खिदमत करने पर अब्दुल सत्तार ईदी साहब को फॉर एग्जांपल खल निशान इम्तियाज मिला। और अगर कोई किसी को कत्ल कर देता है तो उसको क्या मिलता है? उसको फॉर एग्जांपल सजा मिलती है, जेल में जाता है। तो ये पॉजिटिव फॉर्मल सैंक्शंस हो गई। इनफॉर्मल मैंने जैसे माँ की एग्जांपल दी।
Customs can be defined as regular or patterned way of behaving or appearing because of their ancient nature. सलाम करना कस्टम है। आप आए अंदर बैठ जाएं, आप सलाम की जगह आदाब भी कह सकते हैं, लेकिन सलाम अलैकुम बोलना हमारे यहाँ वालेकुम सलाम बोलते हैं। ईद मुबारक हम लोग कहते हैं, उसके जवाब में लोग कहते हैं खैर मुबारक। अब बाज़ औक़ात लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि ईद मुबारक का क्या मतलब है जो वो बोल रहे हैं, खैर मुबारक का क्या मतलब। ईद का मतलब है आपको आज की खुशी बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक की खुशी अपने साथ खैर लाई है, आपको वो उसके साथ आने वाली खैर का की बहुत बहुत। सिंबल्स, जेस्चर, साइंस, ऑब्जेक्ट, सिग्नल्स, वर्ड्स, ठीक है, पीपल जो हेल्प करते हैं लोगों को अंडरस्टैंड करने। जैसे मैंने आपको अभी सलाम का बताया कि वो एक सिंबल है, इसी तरह से वी साइन यूएसए के अंदर तो ये विक्ट्री और पीस का निशान होता है। पाकिस्तान के अंदर जितने करप्ट सियासतदान है वो अदालत से या जेल से निकलते हैं तो वो पीस का साइन बनाते हैं या विक्ट्री का साइन बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, इंग्लैंड में इसको रूड और फ्रीक्वेंटली यूज टू सिग्निफाई कंटेम्प्ट और डिफाइंस। और आपने देखा होगा कि कुछ मुल्कों में ये डिफाइंस शो करता है, यानी रेजिस्ट करना है हमने किसी चीज को, अथॉरिटी को, ताकत को, तो ये मेथड, ये सिंबल डिफाइंस के लिए भी यूज होता है। पाकिस्तान में ये दोनों तरह से इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड, काइंड्स ऑफ कल्चर। कल्चर की अब टाइप्स, आइडियल कल्चर, रियल कल्चर एक कल्चर होता है, मटेरियल नॉन मटेरियल कल्चर होता है। कल्चर के कंपोनेंट्स होते हैं, कल्चर के अंदर खाना पीना है, लिबास है, जबान है, लैंग्वेज है, सॉरी लिटरेचर है, आर्ट है। ये मटेरियल कल्चर भी है, लेकिन कल्चर के अंदर नॉन मटेरियल चीजें भी हैं, जैसे आइडियाज हो गए, जैसे लोगों की सोच हो गई, लोगों का किसी को देखने का अंदाज, किसी के बारे में सोचने का अंदाज, एक दूसरे को सपोर्ट करने का, प्यार करने का अंदाज। The ways of thinking, acting, and material objects that together form a people's way of life. अब आप कल्चर की कोई 150 एग्जाम्पल डेफिनेशंस निकाल सकते हैं, आप उसमें से कोई सी भी 2-3 आप कोट कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना कि यार अभी यहाँ पर ये लिखा हुआ है, थोड़ी देर बाद तो देयर कैन बी मल्टीपल definitions of culture. Non-material culture, the ideas created by members of a society. आइडियाज और आइडियल्स और एक्सपेक्टेशंस नॉन मटेरियल कल्चर होते हैं, फिजिकल थिंग्स जो है वो मटेरियल कल्चर। आइडियल कल्चर, रियल कल्चर। आइडियल कल्चर है कि वो गाइडलाइंस के सोसाइटी जो बनना चाहती है उसको आइडियल कल्चर। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, हार्ड वर्क, ये वो टारगेट्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो सोसाइटी अचीव करना चाहती है मगर अभी किए नहीं है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी डिजायर। रियल कल्चर जो सोसाइटी में इस टाइम एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सोसाइटी में अभी क्या हो रहा है, हमें लॉयल्टी चाहिए तो, लेकिन फिर भी हम बाज़ औक़ात किसी और से चीट करते हैं। वी एक्सपेक्ट लॉयल्टी फ्रॉम अदर्स बट समटाइम्स वी चीट। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात रिलेशनशिप्स में भी होता है कि एक शख्स अपने अपने पार्टनर को चीट कर रहा है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके पार्टनर उसे चीट किया, उसे गुस्सा आ जाता है, जनाब आप भी तो यही काम कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स एंड व्हाट वी डू टू अदर्स, इसकी डिफरेंस ही रियल कल्चर और आइडियल कल्चर। A cashier gives you too much money back for your change. Do you give it or give it back? Take it or give it back? तो आप अगर उसको अब जितना आपका बनता है आप वो रख के वापस कर देते हैं, तो ये आपकी ऑनेस्टी है, लेकिन बात औकात लोग नहीं करते। मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर की हमने बात कर ली। कल्चरल लैग, period of adjustment when non-material culture is struggling to adapt to material. For example, ethics of interest. बिल्कुल मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर की एवोल्यूशन, उनकी जर्नी डिफरेंट होती है। मटेरियल कल्चर की चीजें तेजी से चेंज होती हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बाउंड, टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेशन होती है, उनकी उनकी लर्निंग, एडेप्टेशन, एक्सेप्टेंस क्विक होती है। नॉन मटेरियल कल्चर आइडियाज, बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, ये वो चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रही होती हैं, जो सोसाइटी में एग्जिस्ट तो करती हैं, तो इनकी इनकी एडजस्टमेंट को टाइम चाहिए। तो मटेरियल कल्चर तेजी से चेंज होता है, नॉन मटेरियल कल्चर को थोड़ा टाइम चाहिए होता है इवॉल्व करने में, और इन दोनों के दरमियान आने वाले जो डिफरेंस है या इनके दरमियान एडजस्टमेंट का जो टाइम है, इसको कल्चरल लैग कहते हैं।
As far as I remember, 2019 sociology had this question on cultural lag or generation gap. कल्चर के फंक्शंस, कल्चर सबसे अहम टॉपिक है. कल्चर इज द ट्रेजरी ऑफ नॉलेज. एक सोसाइटी के बारे में जितना इल्म है, जितना सब कुछ है, उसका खजाना कल्चर. कल्चर डिफाइंस आवर सिचुएशन. हम जिस सिचुएशन में एग्जिस्ट करते हैं, कल्चर उसे डिफाइन. ये हमारे एटीट्यूड्स को डिफाइन करती है कि हम एक दूसरे से कैसे बर्ताव करें, हम चीजों को कैसे देखें, हमारा करियर क्या होगा, हमें जिंदगी में क्या बनना है, हमारी सक्सेस की क्या डेफिनेशन है. ह्यूमन कल्चर प्रोवाइड्स बिहेवियर पैटर्न के बिहेवियर के क्या पैटर्न्स होने चाहिए. कल्चर मोल्ड्स पर्सनालिटी. कल्चर पर्सनालिटी को मोल्ड करता है. कल्चर बताता है कि एक इंसान को कैसा बनना है, अच्छा इंसान कैसे बनेगा, उसकी क्या डेफिनेशन है, इंसान की अच्छाई को किस तरह से आपने अचीव करना है. ये ऑल ऑफ दिस इज कल्चर. कल्चर के फिर मुख्तलिफ सब कल्चर्स होते हैं. जैसे एक हम कहते हैं पाकिस्तानी कल्चर या साउथ एशियन कल्चर, फिर नॉर्थ इंडियन कल्चर अलग है, साउथ इंडियन कल्चर अलग है, बंगाली कल्चर अलग है, मराठा कल्चर अलग है, पंजाबी कल्चर अलग है. तो ये सब कल्चर्स हैं. इनकी कुछ कॉमन चीजें होती हैं हर कल्चर, सब कल्चर की, लेकिन कुछ उसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं. तो एक कल्चर के अंदर मुख्तलिफ सब कल्चर्स भी वजूद में आ जाता है. Number of regional classes live in a society whose respective ways of life are distinctive from another and from the whole culture. मुख्तलिफ रीजनल कल्चर, रीजनल क्लासेस भी आ जाती हैं एक ही सोसाइटी के अंदर. उनके वेज ऑफ लाइफ डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और जो कंप्लीट ओवरऑल कल्चर होता है उससे भी. उनको हम सब कल्चर कहते हैं. इन और ये जनरल कल्चर से इनकी कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है जी. पीपल मेक एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, क्लासेस, ट्राइब्स एंड ब्रादरी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी इन देयर पैटर्न्स ऑफ लिविंग. लोग एसोसिएशंस बना लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्राइब्स यानी मुख्तलिफ कम्युनिटीज बना. बिरादरी होती है, फिर ट्राइब होता है यानी कबीला होता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ तंजीमें बन जाती हैं. दिस सिमिलैरिटी क्रिएट्स आइडेंटिटी अमंग देम. वन और मोर सिमिलर कल्चरल ट्रेट्स बिकम द फाउंडेशंस ऑफ दिस ग्रुप. इंटरमैरेजेस आर कॉमन इन सच ग्रुप्स. ये फिर आपस में शादियां करते हैं. एंडोगैमी जिसको बोलते हैं, विद इन द कल्चर ही शादी होती है. कल्चरल जो एक्सपेक्टेशंस है वो रीइंफोर्स हो रही होती हैं. सब कल्चर की बेसिस क्या होती है? रीजनल सब कल्चर यानी मुख्तलिफ रीजन्स के. अब जैसे अब आप पंजाब में ही देखिए, पाकिस्तानी पंजाब में पोटोहारी एक कल्चर है, फिर पंजाबी कल्चर अलग है, फिर सराइकी कल्चर अलग है. उस सराइकी कल्चर के अंदर जो रियासती कल्चर है वो अलग है. फिर सराइकी जो शहरी सराइकी अलग है. पंजाब के अंदर फैसलाबाद का कल्चर अलग होगा, लाहौर का अलग होगा, साहिवाल का अलग होगा. सो दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट थिंग्स. एथनिक सब कल्चर, मुख्तलिफ जबानों के अपने सब कल्चर हैं. मैंने आपको बताया ये तमाम लोगों की अपनी जबानें भी. पंजाबी कल्चर अलग होगा, सिंधी कल्चर अलग होगा, जो उर्दू बोलने वाले हैं उनका एक अलग कल्चर है, वो शहरी कल्चर उस पर गालिब है. सराइकी बोलने वाला, पोटोहारी, पंजाबी, ब्राहवी, पश्तो, बलोची, हिंद को, ये तमाम कश्मीरी जबान बोलने वाली, बल्ती बोलने वाले, ये तमाम जो कल्चर्स हैं ये डिफाइन करते हैं. अब आप देखें सिंधी स्पीकिंग हमारे यहाँ, हम अगर आप कराची में देखें तो लोग उर्दू बोलने वाले और सिंधी बोलने वालों में एक डिवीजन है. लेकिन आप सिंधी को देखें तो सिंधी के अपने 3-4 लहजे हैं, और लाड़ वाला लहजा बोलने वाले, लाड़ी बोलने वाले और उतराई बोलने वाले, ये आपस में बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं. रूरल अर्बन सब कल्चर होता है. गांव देहात का अपना कल्चर होता है, शहर का अपना कल्चर होता है, छोटे शहर और बड़े शहर के कल्चर में फर्क होता है, अमीर और गरीब के कल्चर में फर्क होता है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, इम्पोवरिश्ड क्लास, अंडर प्रिविलेज क्लास, ये तमाम कल्चर्स सब कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ है. आप इनको एक पाकिस्तानी कल्चर के अंदर भी पैक करके, पैकेज करके बेच सकते हैं. ठीक है. फिर है रिलीजियस सब कल्चर. रिलीजियस सब कल्चर
मुख्तलिफ मजहबी रुझानात का अपने कल्चर, मुख्तलिफ फिरकों के अपने कल्चर होते हैं। इस्माइली फिरके का अपना कल्चर है, बोरी फिरके का अपना है, लतशी लोगों का अपना कल्चर है, पश्तून सॉरी बरेलवी कल्चर सब कल्चर और होगा, देवबंद का अपना एक सब कल्चर है। इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम लोग मुकम्मल तौर पे डिफरेंट हैं, वही दुश्मन है खुदा ना। इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं कुछ चीजों में, एक दूसरे से सिमिलैरिटी। कल्चरल यूनिफॉर्मिटीज हम नेक्स्ट उसमें कर लेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज ये काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। सो आई विल नाउ स्टॉप हियर एंड लेट यू आस्क क्वेश्चंस। जी, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। Okay, ji, no questions. So see you next week, inshallah. Thank you very much, everyone. The class has ended. Thank you very much.